وعلى أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمدللہ اس آیت مبارکہ کے تحت کہ اہل ذکر سے سوال کر لو اگر تم نہیں جانتے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اور اتفاق سے یہ آیت مبارکہ جس میں حکم ہے کہ اہل ذکر سے سوال کرو، اسی کے تحت ذکر فضائل و مسائل، مسائل شرعیہ، مسائل ضروریہ، مسائل روزمرہ جو مومنین کو، مومنات کو روز کے مسائل میں واجب ہے سیکھنا، ان کا الحمدللہ دورہ اور خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. اور آپ حضرات کو یہ یاد ہوگا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پر یہ آیت مبارکہ کو رکھا ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل ذکر سے سوال کر لو اگر تم نہیں جانتے. پھر دوسری جگہ پر آیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید دعویٰ ہے اور اہل بیت علیہ السلام دلیل. ایک دو مثال بھی دیا تھا. آج اسی بحث کو پھر آگے بڑھاتے ہوئے ایک مثال اور دے دیں کہ قرآن نے دعویٰ کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے دلیل پیش کیا ہے. تو اب جب قرآن نے دو مرتبہ چیلنج کیا کہ پوچھ لو، تو کوئی ایسا ہو کہ جو اس کی دلیل میں کہے سلونی قبل ان تفقدونی. یعنی قرآن نے دو مرتبہ کہا فسألو، تو مولائے متقیان نے بھی دو ہی مرتبہ کہا سلونی. نہ تین مرتبہ کہا نہ ایک مرتبہ، اس لیے کہ دلیل بن کے آئے کہ قرآن کہے گا پوچھ لو، مولائے کائنات کہیں گے جن سے پوچھنے کے لیے کہا جا رہا وہ ہم ہیں. فاسألوا اہل الذکر قرآن کہہ رہا ہے اور مولا کہہ رہے سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو ڈالو. کتنا پیارا جملہ ہے، کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے، کیا سلاست ہے اس جملہ مبارکہ میں جو مولا نے فرمایا ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ پوچھ لو قبل اس کے کہ میں مر جاؤں، قبل اس کے کہ میں دنیا چھوڑ دوں، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، بلکہ فرما رہے ہیں کہ قبل اس کے کہ تم مجھے کھو ڈالو. یعنی علی کو معلوم ہے کہ ہم زندگی ایسی گزار رہے ہیں کہ میری زندگی پر کبھی کوئی مرض لاحق نہیں ہوگا، میری زندگی پر کبھی کوئی ایسی بیماری نہیں آئے گی. چونکہ انسان جو بڑا حساب سے چلتا ہے، جو کہ روٹی کھاتا ہو، بہت زیادہ کثرت کرتا ہو. کثرت کا مطلب یہ نہیں جیسے آپ لوگ یا ہم لوگ کرتے ہیں 2 گھنٹہ جا کر کے کماتے ہیں اپنے بدن کو صحیح کرنے کے لیے، 2 گھنٹہ دیتے ہیں گویا 2 گھنٹہ خراب ہو گیا. لیکن مولائے کائنات کی کثرت یہ تھی کہ مولائے متقیان ہمارے کثرت کے بنام یہ کرتے تھے کہ صبح نماز پڑھ کر کے بڑی دور چلے جاتے تھے اور باغ کی سینچائی کرتے تھے. تو باغ میں پانی ڈالنا، ڈول نکالنا، جگہ جگہ باغ کیچڑ میں کوریت لگا کر کے مٹی صحیح کرنا، مٹی چڑھانا بہت بڑی کثرت ہے. لہٰذا گاؤں کے جو کسان ہوتے ہیں ان کی جو حیات کا راز ہے کہ 110 سال کے ہو کے انتقال کرتے، 105 سال کے، 90 سال کے، اس کا راز یہی ہے کہ زیادہ تر شہری لوگ جو صبح کی تازی ہوا ہوتی ہے وہ اپنے گھر بند کمرے میں پڑے رہتے ہیں، پنکھے کی ہوا کھاتے ہیں، اور ایک کسان تازی ہوا اپنے کھیت میں جا کے کھاتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، اور جو صاف و شفاف پاک صاف ہوا ملنی چاہیے وہ اس کو ہوا ملتی ہے. تھوڑا بہت اپنے گھر میں رہا تو تھوڑا بہت باہر رہا. اور کھیت دیکھنے کے لیے جو بھی جاتا ہے کسان، تو ایسا نہیں کہ اس کا کھیت ایک دم گھر کے بغل میں نہیں، مکان بہرحال اتنی دور رہتا ہے کہ آدمی چل کر کے اپنے کھیت تک جائے تو 20-25 منٹ لگ جاتا ہے. تو 20-25 منٹ تک چل کے جانا اور 20-25 منٹ چل کے آنا، 50 منٹ تو یہی کثرت ہو گئی. اس کے بعد آدمی جائے گا اپنے کھیت میں تو صرف آنکھ سے نہیں دیکھے گا اپنے کھیت کو، بلکہ تھوڑا بہت حرکت بھی کرے گا. مثلاً اپنے کھیت میں گھسا، اس نے دیکھا جو برہا بنایا تھا مثلاً نیلگائے نے توڑ دیا تو تھوڑا جھک کر کے برہا صحیح کرے گا. دیکھے گا اس کے آرے میں پانی نہیں پہنچ رہی تو اس کو صحیح کرے گا. دیکھے گا یہاں مٹی کم چڑھی ہوئی تو مٹی چڑھائے گا.
देखेगा ये पौधा टेढ़ा हो रहा है तो उसको सीधा करेगा। तो बहरहाल 2-4 घंटा इतनी मेहनत करके आएगा कि अब शहर का आदमी अगर अपने घर में बैठा बैठा 2 रोटी खा के हजम नहीं कर पा रहा है तो वो खेत वाला आदमी 6 रोटी भी खा जाएगा तो हजम कर ले जाएगा। ये सेहत की राज है और यही बहुत अच्छी मुमिद्दे हयात है, यानी पता चला हयात को आगे बढ़ाने वाली चीज़ है। बहरहाल ये सब शरीयत में है और हमारे पास बरकत भी रखी गई है। तो सबसे पहली बरकत शरीयत के लिहाज से तिजारत में है, उसके बाद दूसरी बरकत ज़राअत में है, फिर तीसरे मजबूरी में कहा कि नौकरी कर लो। नौकरी का मतलब ये कि अपने आप को, हालांकि अल्लाह ताला ने हुर बनाया है, आज़ाद बनाया है, लेकिन नौकरी का मतलब ये कि 8-10 घंटे के लिए जिसके पास गए अब एकदम वो बंधक बना के रख लेगा, यानी उसकी आंखों में बंद रहो। पता चला नमाज पढ़ना है तो बैठे हुए के साथ इजाज़त ले ले तो नमाज पढ़ने के लिए जाए, आज जुमा का दिन है या मुहर्रम है तो मजलिस में जाना है, या कोई ख़ास काम आ गया है तो बैठे हुए हैं, किसी अधिकारी को जो है लिख करके देंगे या किसी बड़े को अपने कहेंगे साहब अगर वो आ गया तो बता देना कि मैं फला काम से 2 घंटे के लिए गया हूँ। तो ये सारी चीज़ें मजबूरी हो जाती है, लिहाजा अपने पास नौकरी की बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं की गई। इंसान आज़ाद है तो अपनी इबादत में आज़ाद हो, अपने इस्लामियात और मजहबियात में आज़ाद हो। सबसे पहले तिजारत करे, उसके बाद ज़राअत करे। ज़राअत यानी खेती, जो हमारे मौलाए मुत्तक़ियान ने किया और नबियों ने किया। नबियों की आदत रही, सबसे पहला काम खेती करते थे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह खेत में एक फ़ायदा ये है कि इमाम से पूछा गया, चौथे इमाम से 5वें इमाम से सवाल किया गया कि आप लोग इतना ज़्यादा खेती पर तवज्जो क्यों देते। चूँकि 5वां इमाम जब बहुत ज़्यादा अर्ग हो गए, दोपहर का वक्त था, नमाज का वक्त हुआ चाहता था, एक सामने जा कर के मादल्ला टोक दिया, कहा कि आप लोग को तो मैं बड़ा अल्लाह वाला समझता था और आप इमाम होते हुए इतना ज़्यादा पसीना बहा रहे हैं खेत में। तो इमाम ने कहा कसम खुदा के ये जो मैं खेती कर रहा हूँ अपने अहल वयाल के लिए, अगर इसी पसीने में अभी मर जाऊँ तो शहादत की मौत होगी। ये मैं अपने अहल वयाल के लिए जो मेहनत कर रहा हूँ अगर अभी इंतकाल हो जाए तो ये शहादत की मौत होगी। उसके बाद उसने कहा मौला आपके घर में मसलन 2-4 लोग हैं या चौथे इमाम के घर में बहुत ज़्यादा लोग, लेकिन आप इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि आपके घर में जो है अनाज बहुत ज़्यादा आए, गल्ला बहुत ज़्यादा आए। तो इमाम मुस्कुराए, कहा कि तू खेती को देख रहा है मेरी, जब दाना कटता है उस वक्त उसको देखना चाहिए। यानी इशारा ये था कि हम लोग जब दाना बोते हैं और जो है अनाज लगाते हैं तो लगता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने घर में ज़रूरत बकदर ले जाते हैं, बकिया छोड़ देते, जितने गरीब हैं इलाके के आके ले जाए, जितने मिस्कीन आके ले जाए, और जो दाना छिटक जाता है उसको उठाते नहीं कि आसमान के परिंदे भी तो मोहताज है, हम परिंदों के लिए छोड़ देते हैं, जानवर के लिए छोड़ देते हैं, इंसानों के लिए छोड़ देते हैं। और यकीनन अगर कोई जानवर के मोहताज है, परेशान हाल है, तो रिवायतों से साबित है कि उनकी भी दुआ कबूल होती है, उनको भी दुआ। चूँकि हमारे सामने तालिब इल्म भी बैठे हुए, लिहाजा इस बात की तरफ इशारा कि तालिब इल्म के लिए मिलता है कि जानवर की दुआ कैसे कबूल होती है, इसलिए कि उनके उस्ताद ने इशारा किया। गए और पढ़ने के लिए जाना चाह रहे थे, रास्ते में सोचा कि थोड़ा सा कुछ नाश्ता कर लें। बहरहाल जैसे ही बैठे क्या देखा, कुछ जानवर हैं जो बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, लौट रहे हैं, और ऐसा लगता है जैसे जान चली जाएगी उनकी। समझ गए कि ये जानवर बहुत ज़्यादा भूखे हैं और इनके पास एक रोटी थी, खा लिया, अब क्या करें। लिहाजा इनके दिमाग में आया कि मेरे जेब में पैसा तो नहीं है, लेकिन मार्केट करीब है, ये किताब हमारे पास जो दर्स की है चलते बेच देते, और बेच करके पहले जानवर का पेट भरते, फिर बाद में देखा जाएगा। अब जो किताब बेचने के लिए गए तो इत्तेफाक से जो किताब बेच रहा था उसके घर में दूध था। कहा पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारे पास जितना भी दूध है इस किताब को रख लो, दे दो, इसलिए कि हमको बहुत सख्त काम है। बहरहाल उसने दूध दे दिया। अब ये ले करके आए तो जो कुत्ता तड़प रहा था उसके सामने दूध को रखा तो बड़े शौक से उसने चाट करके पूरा दूध खत्म कर दिया, और ख़त्म करने के लिए फिर जो है एक दफ़ा आसमान को बड़े गौर से देखा और ज़बान को हिलाया। बहरहाल तालिब इल्म तो नहीं समझ पाया कि ये दूध पीने के बाद आसमान की तरफ देख के क्या कह रहा है। बहरहाल जब क्लास में आया तो पहले तो उसका दिल नहीं चाह रहा था कि किताब भी नहीं, उस्ताद टोकेंगे, खाली हाथ क्यों चले आए और आज मैं जाके क्या करूँगा। फिर सोचा कि नहीं 2 घंटा मैं खाली बैठ के क्या करूँगा, चल के क्लास में बैठता हूँ। पर क्लास में जब गया तो उसको ऐसा लग रहा है कि आज उस्ताद जो कहने वाला वो जहन पे पहले ही से आ रहा है, और हर चीज़ जो है जहन बहुत तेज़ काम कर रहा है।
फिर शागिर्दों के साथ मुबाहिसा करने बैठा तो शागिर्द जिनके पास किताब थी उनको ज़्यादा समझ में नहीं आया, ये उससे ज़्यादा डबल समझ में आ गया। बहरहाल शागिर्द भी ताज्जुब में कि आप तो खाली हाथ बैठे हुए थे, आपके पास किताब भी नहीं थी, इतना ज़्यादा कैसे समझ। तो कहा कि एक काम मैंने किया, चल के उस्ताद से बताते हैं। उस्ताद को जब बताया, कहा वो कुत्ता आसमान की तरफ नहीं दे रहा, तुम्हारे लिए दुआ कर रहा था, इस वक्त तुम्हारा ज़हन बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, एक जानवर की दुआ की वजह से। लिहाजा हमारे इमाम मौलाए कायनात भी बाग में जो भी आपके फल होता था पूरा फल नहीं तोड़ते थे, बल्कि बहुत ज़्यादा हिस्सा छोड़ देते थे जानवरों के लिए। चौथे इमाम खेती करते थे, बहुत ज़्यादा अनाज को कोने कोने पर छोड़ देते थे कि हम हट जाएंगे तो परिंदे आएंगे, हमारे सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम लेकर के गल्ला हट जाएंगे तो बहुत से परिंदे आएंगे, कौवे हैं, कबूतर हैं, उस्कूर है, छोटे छोटे परिंदे हैं जो खेतों के किनारे पेड़ों में बैठे रहते हैं, वो दाना चुगते हैं, कोई सरसों ले जाता है, कोई गेहूं ले जाता है, कोई जौ ले जाता है। तो इमामों की आदत ये थी आखिरी इमाम तक बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त, और इंशाल्लाह पेश करेंगे मौलाए मुत्तक़ियान तो बहुत ज़्यादा ही मेहनत करते थे, इसलिए कि इंशाल्लाह आप ज़ियारत करने के लिए जाएँ। देखिए इत्तेफाक की बात है कि पहली रमज़ान से लेकर माशाल्लाह मुसलसल आपके लिए पता क्यों हमारे दिल में दुआ आ रही कि आप लोग सब ज़ियारत करबला हो जाए, सब इंशाल्लाह हाजी हो जाए, सब उम्रे से इंशाल्लाह करीब हो जाए, अहले उम्रे से हो जाए। बार बार मैं दुआ दे रहा हूँ। तो आप लोग जब इंशाल्लाह जाएंगे तो मदीने के करीब एक शहर मिलेगा, शहर अम्बू जिसको चश्मे वाला शहर कहा जाता है, जिसमें बागात बहुत ज़्यादा है, जिसमें कुएँ बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें नहरें बहुत ज़्यादा हैं। और जब सारी चीज़ें देख लीजिए आप, जो मदीने से थोड़ा दूर है और मदीने ही के बराबर है और पूरे अरब में बहुत ज़्यादा हरा भरा है, उसके बाद आप जाके उसकी तख्ती पढ़िए, अरबी में लिखा हुआ है, तो आपको मिलेगा कि इसमें बाग लगाने वाले का नाम अली है, चश्मा खोदने वाले का नाम अली है, जगह जगह कुआं खोदने वाले का नाम हसन और हुसैन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से मेरे मौला ने मेहनत किया है। यानी ज़्यादातर जो अभी भी बुजुर्ग हैं आप देखें, उनसे अगर आप कहते हैं कि साहब अरे आपके बदन में थोड़ा सा भारीपन आ रहा है, कसरत कर ले 2 घंटा 3 घंटा, तो कहेंगे नहीं साहब इतना ज़्यादा टाइम नहीं कि हम कसरत करेंगे। हाँ अलबत्ता काम के लिए जो है अपने खेत में काम और बढ़ा देंगे, पैदल कम चलते थे ज़्यादा चलते, यानी कुछ अपना भी काम करें। यही वजह है कि देखें जापान वगैरह में जो इतना ज़्यादा सामान तैयार हो रहा है, वो कसरत भी करते हैं तो कुछ ऐसा काम करते हुए कि जो मार्केट में नजर आए। मतलब अपने बच्चों को पहाड़ी में लटाते हैं, गिनती भी जो है याद कराने के लिए देते हैं, तो 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, पहली दफ़ा गया है, 1-2 महीने के बाद उसको पहाड़ा मिलेगा, गिनती मिलेगा, तो ऐसे ही नहीं देते हैं, बल्कि खाली माला के जो है यानी धागे होते वो दे देते हैं। और उसके बाद जो छोटे छोटे खिलौने या ऐसी चीज़ें होती हैं जो मार्केट में बिकने की है, कहते बेटा इसमें 1 डालो, देखो ये 1 हो गया, 2 डालो, देखो 2 हो गया। पता चला एक तरफ माला भी तैयार हो रही है, एक तरफ दहन भी तैयार हो रहा है, यानी उसमें भी टाइमिंग का बेकार नहीं आता है। ये जो चाइना में तरक्की हो रही है, जापान में तरक्की हो रही है, वहाँ घर घर में काम हो रहा है। कोई एक भी घर ऐसा नहीं जिसमें कोई एक खाली बैठा हो और 6 साल का लड़का हो, 5 साल का लड़का हो, नहीं, कोई ना कोई मेहनत हो रही है। औरतें भी मेहनत कर रही हैं, मर्दे भी मेहनत कर रहे हैं, और ऐसे घरों में अल्लाह ताला की बरकत नहीं होगी तो क्या होगी, जहाँ हर आदमी मेहनत कर रहा हो, हर आदमी मशक्कत करता है। मुख्तसर तौर पर 5 आदमी हैं तो 5 मेहनत कर रहे हैं, 8 आदमी हैं तो 8 मेहनत कर रहे हैं, फिर अपने घर की बरकत देखें। तो ये हमारे इमामों ने सिखाया है, आज मैं मासूमे ने सिखाया। बहरहाल ये फदाइल का हिस्सा था। मसाइल में बहुत मुख्तसर तौर पर एक मसले की तरफ आज ये भी इशारा कर दिया जाए कि मैं देखता हूँ कभी कभी मस्जिद में, अल्हम्दुलिल्लाह हालांकि अभी हमारे शहर में हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग हजरात भी इतने ताकतवर है कि उनके घुटने खराब नहीं हुए, लेकिन देखा गया आके बैठ के नमाज पढ़ के चले जाते हैं। ऐसे सड़क पर खूब चल रहे हैं, अगर कह दिया जाए पता चला नौशेरा पैदल चले जाएंगे या कहाँ का, लेकिन नमाज के लिए आए, ऐसा बैठ गए जैसे लगता है बस मस्जिद में घुटने में तकलीफ होगी। अभी तक रास्ते में चल रहे थे तो कोई घुटने में तकलीफ नहीं थी, कोई कमर में तकलीफ नहीं थी, तो ये जायज़ नहीं है। जब आप हर जगह पर अपना काम कर सकते हैं तो नमाज भी उठ बैठ करके पढ़े। बहुत मजबूरी के आलम में जो मस्जिदों में जगह जगह रखा गया है, बहरहाल ईरान में, इराक में या ऐसे बड़े शहरों में, बड़े सिटियों में
जिनके पूरे घर में एसी इस्तेमाल हो रहा है और एसी का पहला काम है घुटने को इफेक्ट करता है, चर्बी बढ़ा देता है। जब चर्बी बढ़ती है तो घुटना मुड़ने नहीं पाता है। ये एसी का सबसे ज़्यादा खतरनाक काम है। ज़्यादातर जो तकरीबन 50 साल की उम्र के बाद उनका हाथ सही नहीं चलता है, पाँव नहीं सही चलता है, गर्दन घुमाने के बाद पूरा घूमना पड़ता है, ये एसी का कमाल है। कि पता चला एक देहात का आदमी फौरन जो है गर्दन घुमा के देख लेगा, लेकिन एक शहर का आदमी जो एसी में रहता है मुकम्मल तौर पर घूमेगा कि साहब क्या कह रहे हैं। ये पता चला गर्दन नहीं घूम रही है, पूरा हाथ नहीं घूम रहा उसका, पूरा घुटना ही नहीं घूम रहा है, एसी जाम कर देता है। लिहाजा अपने पास जो मुखालिफत है कि ज़्यादा इंसान को आराम तलब नहीं होने चाहिए किसी वजह से। अब लोगों की आंखें खुलने की शरीयत ने, इस्लाम ने मना किया है कि फालतू अपने आप को आराम न दो। इसलिए अपने बदन को जितना आराम देते चले जाओगे उतना ही ज़्यादा बुढ़ापा आता चला जाएगा। जितनी ज़्यादा तकलीफ में रखोगे, पता चला 70 भी साल के हो तो लोग सोचेंगे कि ये 50 साल का है या 55 साल का है। इसलिए कि मेहनत करने वाला आदमी, मशक्क़त करने वाला आदमी, धूप में रहने वाला आदमी है तो बहुत ऐसा देखा जाता है। पता चला चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सारा काम अपना कर रहे, नमाज में आए तो जल्दी से बैठ गए, ऐसा जायज़ नहीं। अगर बहुत मजबूरी हो गई है, घुटने में सही में तकलीफ है, तो उसका जो हुक्म ये है कि आप आइए नमाज खड़े होकर के पढ़िए, अल्लाहु अकबर तकबीरतुल इहराम खड़े होकर कीजिए, चूँकि बैठ के जायज़ नहीं। उसके बाद आप खड़े होकर के पहला सूरा पढ़िए, दूसरा सूरा पढ़िए। दूसरा सूरा पढ़ने के बाद आप देखिए कि रुकू कर सकते हैं कि नहीं। अगर रुकू में मुकम्मल तौर पर नहीं झुक पा रहे तो अपना हाथ घुटने तक पहुंचा दीजिए। इतना भी आप झुक गए तो आपका रुकू मान लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि दोनों हाथ घुटने पर रख दे तभी रुकू है, नहीं, आपका ये पंजा जो है रुकू में जो है जाने से पहले यहाँ तक पहुँच गया, थोड़ा भी आप झुक गए तो रुकू मान लिया जाएगा, ये मजबूरी है। तो पता चला इतना भी कर सकते हैं तो करना है। उसके बाद सजदा करना मुश्किल है तो ठीक है, सजदे में आप बैठ गए और सामने सजदा रख लिया और थोड़ा सा जो है पेशानी ले गए उठा के कर लिया, तो जितना है मजबूरी बस उतना ही करना है। ये नहीं कि सजदा नहीं कर पा रहे पूरी नमाज बैठ के पढ़ रहे हैं तो पता चला पूरी नमाज बातिल हो जाएगी। सलवात भेजा ये बहुत अहम मसला है। बहरहाल ये नमाज का मसला। और दूसरा मसला जो मुख्तला बे है और इंशाअल्लाह अनकरीब आपको ये मसला दरपेश आने वाला है, तो ये भी मसला आपके जहन में रहे कि अनकरीब आपको ये मसला सामने आने वाला है, जिसको आज मैं बयान कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह और इसको बयान करूँगा। वक्त खत्म हो गया, 1-2 मिनट बस। के दरपेश होने वाला मसला ये है कि जो हजरात हमारी मस्जिद में या माशाअल्लाह जमात में बुजुर्ग आ रहे हैं, यानी इतने बुजुर्ग हैं कि रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं, या कोई ऐसी बीमारी है कि डॉक्टर ने उनको मना कर दिया है, या कुछ ऐसा है कि शुगर वगैरह, एक तो शुगर बढ़ने वाली होती है तो बढ़ने वाली में तो ये तो हुक्म है कि रोज़ा रखो, बढ़ने लगे तो फिर देखो डॉक्टर से मशवरा लो, अगर न कर सको तो जो है वहाँ पर ले जा करके तोड़ दो, दवा खा लो, बाद में उसको रख लेना। लेकिन एक घटने वाली है जिसमें डॉक्टर से भी मशवरा नहीं ले सकते, फ़ौरन कुछ खाना है, फ़ौरन कुछ पीना है, तो वो मसला अलग है। एक शुगर घटने वाली होती है जिसमें फ़ौरन आदमी को कुछ न कुछ भूल के मीठा या जो है नमक का पानी वगैरह पिला दिया जाता है, जैसी उसकी जो है वो हो तो उसमें उसका रोज़ा वो नहीं रह सकता। तो पता चला मजबूरी के आलम में है। बुढ़ापे का मतलब 80 साल के ऊपर के हो गए, बुढ़ापे ये 70 साल 72 साल नहीं, 80 साल के ऊपर के हो गए हैं तो उनके ऊपर रोज़ा मुश्किल हो गया, या जो है ऐसा मरद लाहक हो गया है कि रोज़ा रखेंगे तो 3 टाइम हमको दवा खाना नहीं खा पाएंगे, और दवाई नहीं खाएंगे तो हमको जो ये फला मरद लाहक हो जाएगा, या जो है कोई ऐसी मजबूरी है कि जो है अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, देखने में लग रहा है, लेकिन उसके अंदर प्यास की बहुत बड़ी मुसीबत है कि अगर 2-4 घंटे में पानी नहीं पिएगा तो बेहोश हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हुक्म क्या है? ऐसे लोगों के लिए हुक्म है कि वो फिदिया निकालें, सही हो सके तो रोज़ा रखे और नहीं सही होने का इम्कान है तो फिदिया निकालें। फिदिया बोलते 1 सा गंदुम, 1 सा गंदुम यानी एक रोज़े के बदले में 750 ग्राम गेहूँ निकाले। और हुक्म यही, सिस्तानी साहब का हुक्म यही है कि गेहूँ का हुक्म है, जौ का हुक्म है तो वही निकालें। बहुत से लोग आसानी के लिए पैसा निकाल के दे देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर मजबूरी है, बाजार नहीं जा सकते और जो है पता चला जहमत नहीं उठा सकते तो पैसा दे के बताएं कि ये फिदिये का है, आप गेहूँ या जौ मंगा लीजिए, मैं आके फिर से नियत करूँगा। इसलिए कि बाकायदा नियत करके निकालना है कि मैं अपनी तरफ से इस मरद के बिना पर अपना फिदिया निकाल रहा हूँ कुर्बतन लिल्लाह। और ये 750 ग्राम मिसाल दी गई है, लेकिन कुरान कहता है फमन ततव्वा फहुवा खैरुल्लाह, अगर कोई ज़्यादा निकालता तो बेहतर है। यानी एक मुख्तसर ऐसा हुक्म दिया ताकि सब कर सके, लेकिन अल्लाह ताला ने दिया है, आप जो है 750 ग्राम के बजाय 2 किलो निकाल सकते हैं,
एक दिन में 3 किलो निकाल सकते हैं तो निकालिए, बहुत अच्छा है। लेकिन पैसे की जगह पर गेहूं या जौ अनाज निकाल करके बाकायदा हाथ रख करके नियत करें, यानी अपनी तरफ से, अगर वालिद की तरफ से निकालते तो वालिद की तरफ से, अपने जो है माँ की तरफ से निकाल दे तो माँ की तरफ से, अपने मरहूम की तरफ से निकाल दे तो इसको कहते हैं फिदिया। और जो है ये तो एक हुक्म हो गया। दूसरा हुक्म ये कि पता चला कि रोजा आपको रखना था, किसी हिसाब से छूट गया, लेकिन पूरा साल निकल गया, दूसरा रोजा आ गया, आप नहीं रख पाए, तो आप जितने दिन का रोजा छूटा था उतना फिदिया आपको निकाल के बहरहाल रोजा रखना है। रमजान के बाद वो रोजा जो कदा है वो रखना है, लेकिन चूंकि एक साल निकल गया तो इसका भी फिदिया निकालना है। तो फिदिया निकालने का तरीका ये है कि 1 साह गंदुम अपने ले आने, अगर 1 दिन का है, 30 दिन का है तो 30 दिन का जोड़ करके गंदुम या गेहूं सामने रख लें और उस पर हाथ रख के नियत करें कि खुदाया फला बीमारी की वजह से मैं रोजा नहीं रख पाया, इसकी तरफ से मैं फिदिया निकालता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। और अगर जो है जैसा बताया शहर है नहीं निकाल पाते तो पैसा भी दे तो हमको बता दे, इसलिए पैसा देने के बाद फिर हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी कि मंडी से हम गंदुम गेहूं मंगा करके फिर से फोन करके बुलाए, कहेंगे अब हमने मंगा लिया, आइए फिर से आप नियत कीजिए और हाथ रख करके नियत कीजिए कि मैं अपनी वालदा की तरफ से निकाल रहा हूँ, अपने वालिद की तरफ से निकाल रहा हूँ, अपनी तरफ। अगर किसी को शक है कि हमारे वालिदैन दुनिया से चले गए, फिदिया नहीं निकाल पाए, तो उनका भी फिदिया निकाला जा सकता है, अपना निकाले। यानी जो मरीज है अल्लाह ताला ने एक सहूलत ये भी दिया है, तो जब इतना बड़ा रोजा उस पर से माफ कर दिया सहूलत से, तो कम से कम फिदिया से हम पीछे ना हटें। और फिदिया भी बहुत बड़ा कोई हवा नहीं है, बहुत बड़ी कोई मुसीबत नहीं कि 1 बोरा गंदुम निकालना है, 2 बोरा गेहूं निकालना है, बहुत मुख्तसर बताया है 30 दिन का जोड़ करके निकालें। चूंकि ये मसला आपके सामने आने वाला है, शबों के बाद निकालना शुरू कर देते हैं लोग, लिहाजा इसको मैंने आज ही बयान कर दिया, लेकिन इंशाल्लाह फिर दोहराएंगे ताकि ये मसला हमारे जहन में और बढ़ जाए। एक सलवात भेजा।